Hello dear students, welcome to this lecture 7 of photochemistry. लेक्चर 6 में हम लोग क्वांटम एफिशिएंसी को डिस्कस कर रहे थे और उस लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में जो डिस्कशन किया था, कैसे क्वांटम एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। वन आइंस्टीन जो वैल्यू है एनर्जी की वो क्या है, उसको भी हमने डिस्कस किया था। वन फोटोन के करस्पॉन्ड कितना एनर्जी एसोसिएटेड रहता है, ये भी हमने देखा था। और साथ ही हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे जहां पर कि क्वांटम एफिशिएंसी को हमको कैलकुलेट करना था या क्वांटम एफिशिएंसी रिलेटेड जो कैलकुलेशंस थे उनको परफॉर्म करना था। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम एफिशिएंसी को ही कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था और ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इन जनरल दे never completely obey the Stark-Einstein law, which states that one molecule which is undergoing photochemical change will absorb one photon. It means if we calculate the quantum efficiency based on this statement, then the quantum efficiency of any photochemical reaction must equal to 1. बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हमने देखा था कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जहाँ क्वांटम एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 आ रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 2 था, और उसी के करस्पॉन्ड दूसरा जो एग्जांपल हमने देखा था वहाँ पर जो क्वांटम एफिशिएंसी था वो लेस देन 1 था। तो पिछले लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि जो क्वांटम एफिशिएंसी का प्रैक्टिकली जो रेंज होता है वो 10⁻⁻² से लेकर 10⁻+6 तक का रेंज होता है। आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम उसी पॉइंट से करेंगे जहां पर पिछले लेक्चर को हमने एंड किया था। आज हमने यहाँ पर कुछ डेटा आपको रेफरेंस के लिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए डेटा हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और ये डेटा क्या है? ये डेटा है क्वांटम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हमने लिस्ट की हुई हैं। इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो क्वांटम एफिशिएंसी है और उसके करस्पॉन्ड जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, इस रिएक्शन को होने के लिए जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। जैसा कि पहली रिएक्शन में आप देख रहे हैं, ये है फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। बेसिकली H2 plus Cl2 will give you twice HCl। इस रिएक्शन के लिए लैम्डा का वैल्यू जो है वो 400 नैनोमीटर है एंड क्वांटम एफिशिएंसी यू कैन सी ओवर हियर। क्वांटम एफिशिएंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl under photochemical irradiation is ranges between 10 raised to power 4 to 10 raised to power 6. Extremely high, means it is highly spontaneous, favorable process under photochemical condition, formation of HCl. Similarly, decomposition of NH3, ammonia gas का decomposition under photochemical condition, which is possibly takes place at 210 nanometer, and look at this quantum efficiency, it is less than 1, 0.2. Similarly, decomposition of HBr, hydrogen bromide, which occurs at 207 to 253 nanometer, and the quantum efficiency is 2. Contradictory, formation of HBr. See, this is decomposition of HBr, which takes place at 207 to 253 nanometer. It is quite high energy range, you can say, and the quantum efficiency is 2. However, when you see the formation of the same HBr via photochemical process, which takes place at 510 nanometer, and look at the quantum efficiency, it is extremely low, that is 0.01. So the decomposition, photochemical decomposition of HBr is much more favored under photochemical condition than the photochemical formation of HBr. And in both, you can see the energy difference. It takes place, formation of HBr takes place at lower energy, and decomposition of HBr takes place at high energy. Okay. This is the formation of phosgene gas, COCl2. Carbon monoxide, when reacts with Cl2 in presence of
light having wavelength 400 to 436 nanometer and the quantum efficiency C extremely high, 10 is to power 3. Therefore, in atmosphere, when the carbon monoxide interacts with Cl2 gas, it results the formation of phosgene, which is a poisonous gas, dangerous gas, and the quantum efficiency of this reaction is 10 is to power 3. It's extremely rapid process which take place in our environment in presence of light, because these two gases are present in our environment. Okay. आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मलेइक एसिड जो होता है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मलेइक एसिड जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिस फॉर्म है और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रांस फॉर्म है, और सिस फॉर्म से जो सिस ट्रांसफॉर्म जो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन में 200 टू 280 नैनोमीटर पर जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो जो क्वांटम एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 0.04। फॉर एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन आप लोग फेमिलियर हैं। एसीटोन को जब डिकम्पोज किया जाता है 300 नैनोमीटर पर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इथेन में, इस रिएक्शन का जो क्वांटम यील्ड है 0.3 क्वांटम यील्ड यानी क्वांटम एफिशिएंसी। तो ये कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हमने यहाँ पर समराइज किया है, और इस टेबल को आपको बताने का जो इंटेंशन है, जो बताने का जो मीनिंग है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि क्वांटम एफिशिएंसी सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक समान नहीं है, ना ही ये वन है, जैसा कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने अपने स्टेटमेंट्स के पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था। क्लियर? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है उनका क्वांटम यील्ड बहुत हाई है, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है उनका क्वांटम यील्ड बहुत लो है, और कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनका क्वांटम यील्ड मॉडरेट होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होगा और लो भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम फोटोकेमिकल रिएक्शन को 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, फोटोकेमिकल रिएक्शंस विद वेरी हाई क्वांटम यील्ड। ओके। नंबर 2, photochemical reactions with moderate quantum yield, say 1 to 2 or 2 to 3 up to 3 quantum yield. And finally third category कौन सा हो जाएगा? photochemical reactions with quantum yield less than 1। ठीक हो गया? इस तरह से हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी रिएक्शनें जो है वो फोटोकेमिकल जो फर्स्ट कैटेगरी में आती है, कौन सी सेकंड कैटेगरी में आती है और कौन सी थर्ड कैटेगरी में आती है। अब हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम एफिशिएंसी की जो वैल्यूज हैं फॉर डिफरेंट फोटोकेमिकल रिएक्शंस, उनके आधार पर हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहली कैटेगरी जैसा हमने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट कैटेगरी है photochemical reactions with phi, that is quantum yield or quantum efficiency as smaller integer means जो कि बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं, ग्रेटर देन 1 है, सपोज जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 1.5 हो गई, एटसेट्रा। ओके। तो इस कैटेगरी में जो रिएक्शन आती है आप उस टेबल से भी देख सकते हैं, वहां पर था डिकम्पोजिशन ऑफ HI। डिकम्पोजिशन ऑफ HI का जो क्वांटम यील्ड है या क्वांटम एफिशिएंसी है वो 2 है। सिमिलरली HBr का डिकम्पोजिशन हमने देखा था, उसका क्वांटम एफिशिएंसी 2 है। SO2 प्लस Cl2, ये जो SO2 Cl2 होता है सल्फोनिल क्लोराइड, इस की जो क्वांटम एफिशिएंसी है वो 1 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रुप है रिएक्शंस का या इस तरह की जो भी रिएक्शंस होंगी जिनका की क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा हाई नहीं है, या ये मान सकते हैं कि स्मॉल इंटीग्रल वैल्यू है इसकी क्वांटम एफिशिएंसी का जो वैल्यू है, जैसे कि 1, 2 और 3 काइंड ऑफ थिंग। ओके। दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि भाई क्वांटम फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैविंग क्वांटम एफिशिएंसी लेस देन 1। आपने उसमें लेस देन 1 की भी रिएक्शन देखी थी, एसीटोन का डिकम्पोजिशन देखा था, सिमिलरली HBr की फॉर्मेशन देखी थी फ्रॉम H2 and Br2, अमोनिया का डिकम्पोजिशन देखा था कि N2 और 3H2 में, जैसा आप यहाँ पर लिखा है
अमोनिया गैस, इसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, इसका क्वांटम एफिशिएंसी आपने कल देखा था वहाँ 0.2 था। इसी तरह से NO2 है। कुछ एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए हैं जो उस टेबल में नहीं थे, तो आपके पास वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल वहाँ से आप ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, जैसे कि SO2 और Cl2 वाला एग्जाम्पल था, ये यहाँ पर नया है। सिमिलरली 2NO2 है, इसको NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होना अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, क्वांटम एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 0.7। सिमिलरली H2 प्लस Br2, ये पिछले टेबल में भी हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ HBr अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन with quantum efficiency 0.01 means it is very less favorable processes uh, which take place under photochemical irradiation. तो थर्ड कैटेगरी की जो रिएक्शन होंगी, थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन में हम उन रिएक्शनों को कैटेगराइज करेंगे जिन रिएक्शनों के लिए फोटो जो क्वांटम एफिशिएंसी का वैल्यू होगा वो एक्सट्रीमली हाई होगा। तो थर्ड कैटेगरी क्या हो जाएगा? थर्ड कैटेगरी हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस विथ वेरी हाई क्वांटम एफिशिएंसी। ओके, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि वहां पर आपने फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन देखा था, आपने फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस देखा था H2 प्लस Cl2 से, ठीक हो गया। H2 प्लस Cl2 जैसे कंबाइंड होकर फोटोकेमिकल कंडीशन में HCl बनाते हैं तो क्वांटम यील्ड आपने देखा था 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ तक था। तो पहला एग्जांपल आप शुरू कर सकते हैं, H2 प्लस Cl2 अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन will give you twice HCl and quantum efficiency for this varies from in order of 10⁻⁴ to 10⁻⁶. ओके, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 दैट इज COCl2 formation of phosgene gas and quantum efficiency for this process we have seen in previous table that was 10⁻³ मीन्स कि एक्सट्रीमली हाई क्वांटम एफिशिएंसी वाली प्रोसेसेस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप किसी सिस्टम को, जो भी फोटोकेमिकली एक्टिव मटेरियल है जो कि किसी फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म कर सकता है, उसको अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अगर आप इरेडिएट करा रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि जो कुछ का तो क्वांटम एफिशिएंसी का वैल्यू बहुत हाई आ रहा है, कुछ का क्वांटम एफिशिएंसी का वैल्यू बहुत लो आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? तब उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं या कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो पॉसिबल रीजन्स हैं जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि फॉर सर्टेन रिएक्शंस क्वांटम एफिशिएंसी इज वेरी हाई एंड फॉर सर्टेन रिएक्शंस क्वांटम एफिशिएंसी इज वेरी लो। और इसको दूसरे टर्म में अगर कहें तो कुछ रिएक्शन है फोटोकेमिकल इरेडिएशन में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं और कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो फोटोकेमिकल इरेडिएशन में बहुत कम एफिशिएंट हैं जिनका कि क्वांटम एफिशिएंसी लो है। उसके रीजन को हम अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वांटम एफिशिएंसी में जो वेरिएशंस आते हैं, किसी प्रोसेस के लिए क्वांटम एफिशिएंसी का वैल्यू बहुत हाई होता है, किसी के लिए बहुत लो होता है। तो इस फैक्टर को जस्टिफाई करने के लिए बोर्नस्टीन ने दो अपना जो ऑब्जर्वेशन थे उनको प्रपोज किया और बोर्नस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने फोटोकेमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरी में, दो स्टेप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट स्टेप जो है उन्होंने इनको प्राइमरी स्टेप बताया। प्राइमरी स्टेप मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी स्टेप वो स्टेप होता है जहां पर फोटोन डायरेक्टली फोटो एक्टिव मटेरियल से या सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद जो लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं या जो फोटो एक्टिव मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर मूव करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्साइटेशन। ओके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये क्या करेंगे कि सपोज कोई रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट प्राइमरी प्रोसेस में फोटोन को साथ इंटरेक्ट कर रहा है और फोटोन के साथ इंटरेक्ट करने पर ये ए स्टार स्ट्रिक बना रहा है इसको। अब ये जो स्पीसीज है ये हाई एनर्जी की स्पीसीज है और इसको हम एक्साइटेड
मॉलिक्यूल एक्साइटेड एटम कहते हैं। सपोज ये ए है, तो यहाँ पर ये स्टार हो जाएगा और इसने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया। क्लियर? अब जो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होने हैं वो इस हाई एनर्जी के जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल या एटम है उसके करस्पॉन्ड होने हैं, ये परफॉर्म करेगा, मतलब इस लेवल से ट्रांसफॉर्मेशंस होने हैं। इससे पहले भी जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। उस एनर्जी को अटेन करने के बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब उसी एग्जाम्पल को मैं उसी डायग्राम को दोबारा यहाँ पर ट्रेस कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू था, इस वैल्यू पर जो एनर्जी थी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, और ये जो एनर्जी की वैल्यू थी, दिस वैल्यू इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एब्जॉर्ब करने के बाद, यहां पहुंचने के बाद जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा उसके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। इट कैन मूव टुवर्ड्स दिस साइड व्हिच इज द साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट कैन मूव टुवर्ड्स दिस साइड व्हिच इज अगेन द रिएक्टेंट साइड। इसी प्रोसेस में जो प्राइमरी प्रोसेस के बाद जब मॉलिक्यूल या एटम एक्साइट हुआ, तो एक्साइट होने के बाद वहां पर कई ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो उस एनर्जी का लॉस करती हैं, या जिसे हम कहते हैं कि ये जो एक्साइटेड सिस्टम होगा ये डी एक्साइट होके वापस रिएक्टेंट में आएगा। अब वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो ये होगा कि वाइब्रेशनल कैस्केडिंग कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लॉस। अब ये वाइब्रेशनल एनर्जी या वाइब्रेशनल कैस्केडिंग या वाइब्रेशनल एनर्जी लॉस क्या है, इसको समझ सकते हैं कि जो भी एक्साइटेड एटम्स या एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एक्साइटेड एटम्स और एक्साइटेड मॉलिक्यूल जब नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल से जब कोलिजन करेंगे या आपस में जब कोलिजन करेंगे, तो उस कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, और उस एनर्जी के लॉस होने से क्या होगा कि ये जो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इससे एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, मींस वो रिएक्टेंट की साइड आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है, इसके बाद ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगर इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है, इस वैल्यू का लॉस किसी अदर साइड प्रोसेस में होता है, जैसे कि वाइब्रेशनल कैस्केडिंग है, या बाय कोलिजन बिटवीन एक्साइटेड एंड नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल होगा, तो वहां पर एनर्जी का लॉस होगा, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो वापस से रिएक्टेंट जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो वापस से रिएक्टेंट की ओर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मीनिंग क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन तो हो गया था। अब स्टार कंडीशनिंग लॉ ने क्या था कि वन मॉलिक्यूल मस्ट एब्जॉर्ब वन फोटोन या वन क्वांटा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक्साइटेड स्टेट पर चला गया। अब यहां से इसेंशियल जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट में कब जाएगा या प्रोडक्ट में न जाने की रीजन क्या होंगे कि अगर यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है तो वो वापस आएगा, लॉस नहीं होता तो प्रोडक्ट में जाएगा। अगर लॉस होता है, वाइब्रेशनल कैस्केडिंग होती है बाय इंटर एटॉमिक कोलिजन और इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, तो उससे एफिशिएंसी कम होगी। जो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो रिएक्टेंट में वापस आ जाएंगे। इट मींस कि फोटोन तो एब्जॉर्ब कर लिए था उसने, लेकिन वो इफेक्टिव कन्वर्जन प्रोडक्ट में उसका नहीं हो पाया। तो ये प्राइमरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस में ऐसे लॉस हो सकते हैं। साथ ही ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल होगा, ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, उस एनर्जी को नॉन रेडिएटिव जो ट्रांजिशंस हैं या रेडिएशन लेस जो ट्रांजिशंस हैं, उनमें कन्वर्ट हो सकता है। इट मींस एनर्जी को रेडिएशन फ्री किसी फॉर्म में जो प्रोसेसेस होती हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि रेडिएशन लेस जो ट्रांसफॉर्मेशन है या एनर्जी एक्सचेंज है वो कौन कौन से हैं, उनमें परफॉर्म करेगा, उससे भी एनर्जी का लॉस होगा, और उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर पड़ेगा। मींस कि प्रोडक्ट उसी के करस्पॉन्ड कम बनेगा। तो जो ये साइड प्रोसेसेस हैं, वाइब्रेशनल कैस्केडिंग हो गया, नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस हो गया, ये क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड को कम रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि सेकेंडरी प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। प्राइमरी प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको आइडियल सिस्टम मानते हैं कि प्राइमरी प्रोसेस में एनर्जी लॉस सपोज नहीं हो रहा है। तो सेकेंडरी प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं वो है चेन रिएक्शन का।
चेन रिएक्शन का जो पहला स्टेप है जिसे कि आप चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हो, वो यही प्राइमरी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन का स्टेप, मतलब कि रिएक्शन वहां प्रोपेगेट करती है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जो प्रोपेगेशन स्टेप है वो स्टेप हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप है। उस एक्सोथर्मिक स्टेप में रिएक्शन होकर एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को एक्साइट करने का काम करती है। तो फर्दर जो कंटिन्यूएशन है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, देन वो जो 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 चेन कंटिन्यू रहती है, दैट इज द की फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाई क्वांटम यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया? तो दो तरह से बॉर्नस्टीन ने दो तरह से रिएक्शनों को डिस्कस किया, दो स्टेप में। पहला स्टेप प्राइमरी स्टेप, दूसरा स्टेप सेकेंडरी स्टेप। प्राइमरी स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होंगे वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे, और इस एक्साइटेड स्टेट पे जो एटम या मॉलिक्यूल होगा वो अपनी एनर्जी को, हो सकता है कि जो नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं उन नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेसेस में एनर्जी को रिलीज करे या एनर्जी का लॉस करे। वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? वाइब्रेशनल कैस्केडिंग है, vibrational energy loss when reactant molecule collide with excited molecule collides with non excited molecules, okay, तो वहां पर एनर्जी का लॉस होगा और वो वापस रिएक्टेंट में आएगा। सिमिलरली एक्साइटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम में परफॉर्म सम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इससे एनर्जी का लॉस होगा। सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है कि सेकेंडरी प्रोसेस वो होती है जहां पर एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, और ये एक तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मींस कि हाई एनर्जी का एक्साइटेड मॉलिक्यूल लो एनर्जी स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो स्टेबल प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, हाई एनर्जी का सिस्टम जब लो एनर्जी के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो जब एनर्जी सिस्टम में रिलीज होती है तो ऐसी प्रोसेसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस। अब जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई, ये एनर्जी नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने का काम करेगी और वो फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन में मिलता रहता है। ठीक हो गया? एग्जांपल हमने HCl का देखा, फॉर्मेशन ऑफ HCl। आपने फॉर्मेशन ऑफ CCl4 पढ़ा होगा, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। CH4 Cl2 से रिएक्शन का पहले Cl2 फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल में कन्वर्ट करता है, और वही Cl रेडिकल एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, Cl रेडिकल एक्साइटेड एटम है, नॉन एक्साइटेड CH4 के साथ इंटरेक्ट करता है, वहां से HCl एलिमिनेट होता है और CH3 रेडिकल बनता है। CH3 रेडिकल फर्दर Cl रेडिकल से जो कंबाइन होता है तो CH3Cl बनता है। सिमिलरली CH3Cl फिर Cl रेडिकल से इंटरेक्ट करता है तो CH2Cl प्लस HCl बनता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि CCl4 के बनने तक स्टेप टू स्टेप प्रोडक्ट बनते रहते हैं और नया मॉलिक्यूल, नया एटम एक्साइटेड होते रहता है, वो रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। तो ये है चेन प्रोसेस, चेन रिएक्शन। तो इस तरह की जब चेन रिएक्शंस होती हैं, यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती हैं, तो ये क्वांटम एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करती हैं। इसीलिए चेन रिएक्शन वाली रिएक्शंस का जो क्वांटम यील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे रीजन है जो लो क्वांटम यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो रिटर्न आ जाए अपने ग्राउंड स्टेट में बाय लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अदर नॉन प्रोडक्टिव फॉर्म्स। दूसरा ये हो सकता है कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल कोलिजन करे नॉन एक्साइटेड सिस्टम से और एनर्जी एक्सचेंज करे और अपने आप को लो एनर्जी का करके वापस रिएक्टेंट में आ जाए, उससे भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट होगा या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो लेस होगा, क्वांटम एफिशिएंसी लेस हो जाएगी। ठीक हो गया? तीसरा ये हो सकता है कि जब आपने जैसे Cl2 का मैंने एग्जांपल दिया इससे पहले, Cl2 मॉलिक्यूल को जब आप फोटोन देते हैं तो वो Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल में ब्रेक डाउन होता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों Cl रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में रिकम्बाइंड होकर, आपस में कंबाइंड करके फिर से Cl2 को फॉर्म करें, तो इससे प्रोडक्ट तो नहीं बना, एक्साइटेड सिस्टम वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लो क्वांटम एफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर एंड करेंगे। आज हमने डिस्कस किया कि पहले देखा कि भाई कई फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पर कि क्वांटम एफिशिएंसी वेरिएशन है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है, हाई, एक्सट्रीमली हाई, कुछ का लेस देन 1 होता है। उसके बेस पर हमने रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि कैटेगरी 1
reactions with photochemical reactions with quantum efficiency in low integral values, means 1, 2, 3 kind of thing. Photochemical processes with quantum efficiency less than 1. Photochemical processes with quantum efficiency extremely high, like 10 is power 3, 10 is power 6 and so on. उसके बाद हमने देखा कि कौन से ऐसे रीजन्स हो सकते हैं कि जो वेरिएशन इन क्वांटम एफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें बॉर्नस्टीन का हमने जस्टिफिकेशन देखा, और साथ ही लास्ट में हमने लो क्वांटम यील्ड के लिए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो किसी रिएक्शन के लिए लो क्वांटम एफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।